Good morning, students. The topic that we are going to see today is significance of principles of management. In our previous class, we have seen that principles of management, it provides a journal guidelines to the manager. It provides a valuable insight to the manager so that he can take various managerial decision, and he is able to solve various complex situations that he faces during the entire course of the business. However, principles of management, they are the journal guidelines, but which situation is to be dealt in what way, it depends upon the totally upon the creativity of the managers. So however, still the knowledge of principles of management helps the manager in taking the decision quickly. So let us see how principles of management helps the manager in taking quick decision, or how it is beneficial to the manager as well as the the complete organization. The very first importance or significance of principles of management is, first, it provides manager with useful insight into reality. It means that the knowledge of the principles of management helps the manager to deal with the real world situation. Moreover, it adds to the knowledge and ability and understanding of the managerial situation, and it also enables the manager to learn from the past mistake. जैसे काफी बार होता है कि एक्सपीरियंस से ही आप कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हो. अगर आपको पहले कोई चीज आपने की हुई है और उसमें आपका अगर एक्सपीरियंस गलत रहा तो आप उससे सीखते भी हो. सिमिलरली अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें आगे नेक्स्ट टाइम वही चीज को करने के लिए आप अपनी और ज्यादा मेहनत डाल सकते हो. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजर इन दी सेम वे by helping him in solving the real world situation, by adding to his existing knowledge, and by making him aware about the past mistakes, and accordingly he is able to learn from the past mistake. तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे जैसे वो प्रिंसिपल्स का नॉलेज उसका बढ़ता जाता है, इट इंक्रीजेस द मैनेजरियल एफिशिएंसीज एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक मैनेजर का जो रूटीन डिसीजन मेकिंग है, ही कैन गिव दैट रूटीन डिसीजन मेकिंग टास्क टू हिज सबऑर्डिनेट. एंड अगर कोई एक्सेप्शनल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहाँ पे उसकी एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत है, देन इट कैन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉल प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन यूज करके वो अपनी एक्सपर्टाइज को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकता है. तो अगर ये प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन के बारे में मैनेजर को पता होगा, देन ओनली ही विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द प्रिंसिपल. देन सेकेंड इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Now there are two main important resources for any organization, human and material, and both of the resources, they are available, they are limited. So one of the important thing that each and every organization does is optimum use of the resources. And when I am using the word optimum resources, इसका मतलब क्या है, maximum benefit with minimum cost. Now the principles of management, it also helps the manager by developing cause and effect relationship. In our previous session we have already seen what do you mean by cause and effect relationship. जैसे if the sales executive का अगर आपको efficiency increase करनी है, ठीक है, तो the sales manager can give a target to sales executive and उनको कुछ motivation दे सकते हैं. तो ये cause क्या हो जाएगा, by giving them the targets, ठीक है, ये cause बन जाएगा. And when the sales executives are working so hard that it is increasing its productivity, उनकी productivity पे effect आ रहा है, positive effect आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, effect. तो this principles of management, it helps the manager to foresee the cause and effect relationship. तो इससे क्या होगा, ट्रायल एंड एरर अप्रोच से जो वेस्टेज होते हैं उससे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बच सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर अभी हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एनुअल बजट डिसाइड किए जाते हैं, तो आप एनुअल बजट किस बेस पे डिसाइड करोगे, पर्सनल प्रेफरेंस के बेस पे नहीं, लेकिन it will be decided on the basis of principle of contribution. So this is also one of the principle of management, that is principle of contribution. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है कि जो भी आपको काम, जिनको अगर आपको कोई बेनिफिट देना है तो उन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से यू विल गिव दी बजट. जैसे डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उनको ज्यादा बजट एलोकेट करो. तो ये कौन सा प्रिंसिपल से चलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. देन साइंटिफिक डिसीजन. अगेन साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या है, डिसीजन, सारे जो भी डिसीजन आप लेते हो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, जस्टिफाई होना चाहिए, जो भी आपका पर्पस है उस हिसाब से जस्टिफाई होना चाहिए, टाइमली रियलिस्टिक होना चाहिए. आप जो भी डिसीजन लेते हो इट कैन बी इजिली मेजरेबल, इट कैन बी इवेल्युएटेड. तो प्रिंसिपल, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड बाय इंक्रीजिंग योर थॉट प्रोसेस. सो यहाँ पे क्या है, आप सबसे ज्यादा ध्यान आपका लॉजिक पे होता है, ना कि ब्लाइंड फेथ पे. सो इट इज ऑल्सो, जो भी डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन आप इस बेसिस पे लेते हो, प्रिंसिपल ऑन दी
प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, तो इससे क्या होगा, जो भी डिसीजन आप लेते हो दे विल बी फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस ऑफ द मैनेजर. देन कम्स योर मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट. नाउ वी ऑलरेडी नो कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर जस्ट द जनरल गाइडलाइंस, बट उसको भी आपको मॉडिफाई करना पड़ता है बिकॉज business situation or the business environment do not remain the same. We have earlier seen that the business situations are dynamic. As such, the principles of management, adoption of principles of management should be also dynamic. Because यानी जैसे जैसे situations हो गए वैसे वैसे आप principles of management को भी mold कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. ये एक प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि जो भी काम है लोगों में बांटो ताकि वो एक काम करने में उनकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो सके. सो नाउ इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड adopting this principle into their daily course but with an extended form. एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कोर कॉम्पिटेंस या बिजनेस प्रोसेसिंग के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे क्या होता है कि कंपनी हु आर स्पेशलाइज इन कोर बिजनेस, जो कोर एक्टिविटी है दे ट्राई टू स्पेशलाइज इन देयर कोर एक्टिविटी, एंड जो नॉन कोर एक्टिविटीज है इट आउटसोर्स टू दी अदर एजेंसी. जैसे अगर प्रोडक्शन में उनका कोर एक्टिविटी प्रोडक्शन है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दी प्रोडक्शन एक्टिविटी. और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, नॉन कोर एक्टिविटी मतलब क्या हो सकती है, R&D, एडवर्टाइजिंग. तो ये जो R&D एडवर्टाइजिंग है ये आप कोई भी दूसरे बिजनेस फर्म को या कोई स्पेशलाइज एजेंसी को आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं. तो ये भी किसके ऊपर प्रिंसिपल पे बेस पे है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. सो ये प्रिंसिपल को ध्यान में आपने रखा, ये प्रिंसिपल को यूज किया, लेकिन थोड़ा मॉडर्न फॉर्म के हिसाब से आपने उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया. देन कम्स योर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ पब्लिक का काम अभी सिर्फ गुड्स या सर्विसेज खरीदना ही नहीं है. द नॉलेज ऑफ पब्लिक हैज ऑल्सो इंक्रीज, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इट इज फोर्सिंग दी बिजनेस टू गो फॉर फुलफिलिंग ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी करके होता है. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू इक्वल वेजेस फॉर ऑल दी लेबर्स. ठीक है, इट हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड नाउ प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दी कस्टमर्स, केयरिंग फॉर दी एनवायरमेंट, फेयर डीलिंग विद द बिजनेस एसोसिएट. ये सब भी अभी ये प्रिंसिपल में कवर हो गया है. सो दैट इज योर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थियोरी. ठीक है, सो कोई भी अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन या रिसर्च करना होगा तो दिस प्रिंसिपल्स फॉर्म्स दी बेसिस. जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपको कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अगर एंट्री लेनी है तो आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, यानी जो भी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो आपको पास करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द एडमिशन इनटू दैट मैनेजमेंट स्कूल या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. तो ये टेस्ट किस बेस पे डेवलप की जाती है, ऑफकोर्स दे आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, हर प्रोफेशनल कोर्स के लिए यू हैव टू गो थ्रू दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज ऑल्सो, जितना ज्यादा आप नॉलेज रखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग मोर एंड मोर रिफाइंड टेक्निक. दैट इज because of the increased form of principles of management, various other techniques like JIT, that is just in time. Just in time क्या है, it is one of the technique which is used by the production management, जहाँ पे अगर आपको कोई भी मटेरियल्स की जरूरत है तो जब आपको जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उसी टाइम पे आप वो मटेरियल को मंगवा के, यानी ताकि आपका जो एक्सेस सप्लाई ऑफ मटेरियल से आप उसको रोक सको एंड आप इन्वेंट्री कंट्रोल ला सको. सिमिलरली OR यानी ऑपरेशन रिसर्च, कैजान यानी योर जीरो क्वालिटी या जीरो क्वालिटी डिफेक्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी के वजह से एक्सटेंड कर पाए हैं. तो इन शॉर्ट ये जो टॉपिक अब तक हमने पढ़ा ये क्या है, इट इज जस्ट शोइंग यू कि हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब बात होती है कि ये एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है. ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो दो मैनेजमेंट गुरुज है यानी टेलर एंड फेयल, उन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. So in our coming sessions we are going to study about what are the various principles of management, या इन दो गुरुज ने कौन से प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट किया है जिसके वजह से ये आपके बुक में आए हुए हैं आपको पढ़ने के लिए. So see next time we will go on with the principles. Thank you.